Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another video in the contest solution series. So as we discussed previously that we'll also try to make solution videos for lead code contest and other contests as well. But I didn't have enough time in the previous in the past 2 weeks and past 3 weeks. So yeah, no video came. So not a problem. From now onwards, we'll try to maintain this streak and we'll try to maintain making video on the bi-weekly or weekly contest or whatever contest we can do. Nevertheless, we are here with the bi-weekly contest 157, which happened yesterday on May 24th. And yeah, so in this video, we'll discuss all the four problems, starting from the easiest problem, that is the first problem, sum of the largest prime, up to going up to the hardest problem of the contest, which was number of ways to assign edges part two. And yeah, we'll also discuss about what is the difficulty of each problem and how much time you should take to do it in a contest. As well as we'll also discuss some new approaches, some new theory, and uh, and how to approach these problems, right? And I think that's all for the intro part. Let's jump to the problems. Okay, so we start with the first problem, problem 3556, sum of largest prime substrings, which was the first problem for the contest. So let's read the problem. It's a medium level question. And it says, given a string S, find the sum of the three largest unique prime numbers that can be formed using any of its substrings. Okay, तो what we have been given, हमारे पास एक string दी हुई है S, and we have to find the sum of three largest unique prime numbers that can be made from using the substrings of that string S. ठीक है, फिर क्या कहता है? Return the sum of three largest unique prime numbers that can be formed. If fewer than three exist, return the sum of all available primes. If no primes numbers can be formed, return zero. Okay. तो basically तुम्हें सबसे तीन largest unique prime numbers का sum करना है, which can be found by using substrings of string S. तो तुम्हें एक string S दी हुई है, इसमें सारे के सारे digit से बने, right? Every character of that string is basically a character from 0 to 9. ठीक है? And we have to form different substrings, and each substring will represent a number, right? We have to check what all numbers are prime among them, and among all of them we have to pick three unique of them. We have to pick three unique, and they should be the three largest ones. So we first find the prime, then we check, get the three largest ones, and we also have to check that they are unique, and then we sum them up. In a case, when the number of unique prime numbers is less than three, we just sum up, whatever we have. Like if we have only one, we return the sum of one. If we have only two, we return the sum of two largest unique prime numbers. If we have three, we return sum of all three. If we have four, nevertheless, we have to just return three, right? And if no prime numbers are formed, we can return zero. A prime number is a natural number greater than one, and we know what is a prime number. I think that should be self-explained, self-explanatory. A substring is a contiguous sequence of characters within a string. Okay. Each prime number should be counted only once, even if it appears in multiple substrings. Additionally, when converting a substring to an integer, any leading zeros are ignored. Okay. Remember, any leading zeros are ignored, right? So let's say in case you have substring, if you have a substring like 0, 1, 2, you have 0, 2 or 2. So 0, 2 and 2 are basically same. They will not be, taken as different substrings. Okay. Because at the end, when you convert 0, 2 to a number, it will be 2. And if you convert a substring 2 to number, it will also be 2. So that's why we are looking at what unique prime numbers, right? So that's why it said keep, if we have multiple unique prime, if we have multiple prime numbers, we have to ignore the leading zeros, right? Let's go to the first test case. We have what 1, 2, 3, 3, 4. Okay, so we can see in the explanation the substrings we can check is 1, 2, 2, 3, 2, 23, 23. These are the three. Okay, if we take, we also have 2, 3, right? We have these five proper prime numbers that can be found by using the substrings of string S, right? And among all of them, among five of them, which are the three largest? They are 23, 223, and 1223, right? So we take the sum of them, it's 1469. Then we have 111. So we can see that one is not a prime number. We only have one. We have only have 11, which is a prime number. 111 is also not a prime number, right? So the only unique prime string that can be formed is 11. So that's why we get only 11, right? Even if 11 can be formed multiple times, still, as we said, that we are taking unique prime numbers, we'll take only the unique ones, right? The length of the string is 10, which is very small. So I think it's a very brute force kind of solution that you can implement, right? So I think it's not very difficult. What you can do is, okay, let me first name it. This is bi-weekly 157, and it's on lead code. We know that's lead code. Okay.
So for question one, you what do you do? Find all substrings. Find basically just find keep on finding substrings. Find substring. Okay. Then keep a map or anything contain, or you can take any data structure to check for unique numbers. Okay. For unique numbers, right? And then if the number is unique, then you proceed forward to checking prime. So first of all, do this: make substring, then check for uniqueness. Okay, if it is not present in your map, it means that it is unique. It has not been seen, it has been seen for the first time. Then you basically go for checking prime, check prime, and then if it's a prime, you what you can do is you can either keep it in an array or a priority queue. I mean, I would I won't uh, advise priority queue. Why? Because since the uh, yeah, the thing is that since the constraint is very small, the number of substrings that we can even get is around what, 10 into 10, around 100 substrings at max we can get, right? So I don't think there is any need to use priority queue. You can also use a vector or an array, and after you get all the unique prime numbers, you just sort. You just apply sorting. Okay. If you are using priority queue, your values will already be sorted, and if you are using a vector, after you are done with the process, you just have to sort, and you just take the last three prime numbers or whatever you have, right? Let's take an array. Let's say store in array. I think this was more of implementation kind of problem, not a very challenging problem. So overall, what I have seen that in this contest, the difficulty was moderate. It wasn't very difficult. It wasn't very hard. It was just moderate. I mean, the first three problems are actually quite easy. Okay, if you try, you can actually, you should, if you are well versed with your concepts, I think first three problems should be, easy, should be cake for you, right? So yeah, so I think this is the process that we are going to follow. Make substrings, check for uniqueness, check prime, then store in the array, then sort, and then you can just get the last three prime numbers or whatever you have, right? So this making substring would take what, order n square, and I mean if you apply the same thing inside, I mean what you can check is what I have done is that I'll just show you the code. I think it would be better. Okay. So yeah, what I do is I keep on forming a substring. Okay, I have taken a map, so I have taken a priority queue. So as I said, I would not advise it because the constraints are not very big. So you can go for sorting technique. So still, I actually used a priority queue. And then what you do is basically take substrings and you basically form your number. You can keep on forming your number by using a substring formula, right? And then you basically check if that number has already occurred in your map or not. If it has occurred, then there is no need to process it again. If it hasn't occurred, then you can basically go for this temp thing, right? You can basically go ahead and check if it is a prime or not. Okay, so basically since the constraint is also very small, you can also directly keep a function to check its prime. Let's say if the values were very large, I don't think if the values were very large, you would not be able to make substrings itself. I mean, let's say if the n was 10 power of 4 or 10 power of 5, you would not be able to even make substrings, right? So I think this was specifically for lower constraint question, right? So yeah, you get your number, you basically mark it true, then you check if it's a prime or not. If it's a prime, so basically here you can check in order, square root of x. I think that is a very well known technique, that how you basically calculate the prime of, if a number is prime or not. You basically start checking from 2. If it's 1, return false, and you basically keep on going up till I into I is less than equal to x. So basically we know that divisors of a number exist in pairs, right? So let's say if a number has two divisors, a and b, like let's say we have a number n and a into b equal to n, right? Let's say a is smaller than b. Okay, a is smaller than b. Then if you keep on repeating your process of dividing n, then you will eventually land up at a pair b comma a. So this means that there is no need to look for all the divisors, right? You can actually go up till I into I, like I mean square root of x. There is no need to go beyond that. All the pairs, all the divisors would be, you would be able to get in that amount, in that number of iterations, right? Nevertheless, we were only going to check prime, so I think that is enough, and I think that is all. And then you basically get your the best three. So since I've used priority queue, so I have checked what are the best largest three prime numbers, and then I basically sum them up and I return them. I think that is very self-explanatory. I'll just run it again. Yeah, so yeah, it passes this sample test cases, and yeah, okay, that is some new kind of thing. Beats minus percent. Wow.
some new feature I don't know of. Okay, nevertheless, so we can see it has passed, right? Now let's go to the second question. So which is find maximum number of non-intersecting substrings. So this question was actually, this was also very easy, right? This was also very easy, but I think it was more kind of intuitive. I mean, this would come from observation, right? It's more kind of an observation problem. Let's try to understand this problem. First let's read the problem. Okay, so you are given a string word. Return the maximum number of non-intersecting substrings of word that are at least 4 characters long and start and end with the same character. Okay, तो आपको बेसिकली क्या बताना है? आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि इनके कैरेक्टर्स आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने जहां से जहां तक की सबस्ट्रिंग आई कॉमा जे ली है, ठीक है, तुम जे कॉमा से या फिर उसके पहले से स्टार्ट नहीं कर सकते हो नेक्स्ट सबस्ट्रिंग को, राइट? दे शुड बी नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, एंड दे शुड बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग, उसमें कम से कम 4 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, एंड दे शुड ऑल्सो स्टार्ट विद द सेम and end start and end with the same letter. Okay, substring, we know what is substring. Now let's go to the first test case. We have A B C D A F D E F. So we can see if we take this substring, so we can see it starts with A, ends with A, and it has more than 4 characters. It satisfies all our conditions. Very good. We have got our one substring, right? Then we move from F D E F. So we can see we have got a second substring, which again has 4 characters, has same starting and ending letter, and so basically that's why we can get two non-intersecting substrings, right? Then we go to B C D A A A B. Now you can also take B, this whole substring, this whole string, because it starts with B and ends with B and has more than 4 characters. At the same time, you can also take these 4 A's, right? Because this may be 4 characters that start and end with same letter, right? So that's why we have only got one. The size of the string can be 10 to the power of 5, 2 to the power of 5, and that consists of only lowercase English letters. Okay, very good. So now what should be the intuition of solving this problem? क्या करना चाहिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? समझो, समझो हमारे पास एक स्ट्रिंग जैसे कि ए बी सी डी ई ए एफ डी ई एफ ऐसा कुछ था, राइट? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मान लो लेट से मैं यहां से शुरू करता हूँ, ओके, लेट से बेसिकली मैं यहां से शुरू करता हूँ, राइट? आई स्टार्ट विद दिस कैरेक्टर, राइट? अब मान लो मुझे ये कैरेक्टर कहीं पर मिल जाता है फिर से, राइट? मैंने पहले ए देखा, फिर मैंने बी देखा, फिर मैंने सी देखा, फिर मैंने डी देखा, फिर मैंने ई देखा, मैंने देखा कि अभी तक कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ है। बेसिकली एक चीज समझो, व्हेन अ कैरेक्टर रिपीट्स, whenever a character repeats, a character repeats, उसका मतलब क्या होता है? It means you have found a substring, you have found a substring which starts and end with same letter, correct? ये कैसे हो रहा है, ये इसको समझते हैं, राइट? ओके, पहले यहां पर देख लेते हैं। यहां पर तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं ए से स्टार्ट हुआ और ए पे ही हमको दोबारा मिल गया, राइट? एज सुन एज वी गेट अ रिपीटिंग लेटर, ठीक है, याद रखना, जैसे हमको कोई कैरेक्टर रिपीट होता हुआ दिखता है, इसका मतलब क्या है? वी हैव एक्चुअली फाउंड अ सबस्ट्रिंग विच हैज द सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग लेटर, ठीक है? एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू चेक कि तुम जो सबस्ट्रिंग लेने वाले हो उसका साइज जो होना चाहिए वो 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर जैसे कि देखते हैं, लेट्स नंबर देम अप. Okay, this is 0, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so let's say मैं एक क्या कहते हैं वेक्टर लेके चलता हूं जो बेसिकली हर एक कैरेक्टर के लिए इंडेक्स मैपिंग करेगा. ओके, सो वी बेसिकली मैप द इंडेक्सेस ऑफ ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स, ठीक है? तो सबसे पहले जब ए आता है, सो वी कैन सी कि ए अभी एक ही पहली बार आया, सो व्हाट डू वी डू? ए का इंडेक्स क्या है? ए का इंडेक्स है 0, ए पहली बार 0 इंडेक्स पे दिखा था. देन वी हैव बी, बी 1 पे आया, ठीक है? वी कैन सी कि अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है, राइट? सो वी कैन गो ऑन. सो ए 1 हो गया, बी भी ए 0 हो गया, बी 1 हो गया, सी 2 हो गया, डी 3 हो गया, ई 4 हो गया. अब जैसे हम ए पे दोबारा आते हैं तो तुरंत हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे दो चीजें. फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या ये रिपीट हो रहा है? यस, वी कैन सी दैट इट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड एट इंडेक्स नंबर 0, ठीक है? इंडेक्स नंबर 0 पे था और अभी हमें फिर से मिला. इसका मतलब क्या है कि हम एक्चुअली में सेम करेक्टर रिपीट हो गया है 2 बार. इसका मतलब हमें एक सबस्ट्रिंग मिल गई ऐसी जिसमें एक स्टार्टिंग और एंडिंग करेक्टर सेम है, राइट? नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? दिस वाज बेसिकली फॉर इफ अकर्ड अगेन, राइट? जब ये चेक कंप्लीट हो जाए,
देन यू बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, अभी तुम ith इंडेक्स पे हो, अभी तुम ith इंडेक्स पे हो, और तुम्हारा जो लास्ट करेंस आया था, मतलब इस करेक्टर ए का, वो कहाँ पर आया था? वो बेसिकली ए ऑफ क्या कहते हैं, मान लो लेट से उसको सी ऑफ आई मान लेते हैं, या फिर आईडीएक्स मान लेते हैं, आईडीएक्स, ठीक है, आईडीएक्स आ रहा है जो बेसिकली हर एक करेक्टर का इंडेक्स बता रहा है मुझे, ठीक है। तो तुम अभी आई करेक्टर पे थे जहां पर तुमको ए मिला है, एंड लेट से द लास्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर ए अकर्ड एट आईडीएक्स ऑफ ए। तो बेसिकली तुम्हारे सबस्ट्रिंग का साइज क्या आएगा? आई माइनस आईडीएक्स ऑफ ए प्लस वन, करेक्ट। अगर तुम मान लो ith इंडेक्स पे हो और तुम्हें पता है कि लास्ट जो तुम्हारा ए आया था वो बेसिकली आईडीएक्स ऑफ ए पे आया था, तो इस सबस्ट्रिंग का साइज क्या होगा? आई माइनस आईडीएक्स ऑफ ए प्लस वन, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली चेक कि अगर इसका साइज 4 से बड़ा है, 4 से मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एट द सेम टाइम इट हैज अकर्ड सेकंड टाइम, आई मीन इट्स इट सेकंड अकरेंस, सो ये दोनों जैसे ही फुलफिल हो जाते हैं, इसका मतलब आपको एक सबस्ट्रिंग मिल गया है। सो व्हाट डू यू डू इन दैट केस? as soon as you find a substring as soon as you find a substring, you basically increment your count by one. Your answer will be basically this one, ठीक है। तो क्या करते हो? आंसर प्लस इक्वल टू वन, ठीक है। एट द सेम टाइम तुम्हें पता है कि तुम प्रीवियस जितनी सबस्ट्रिंग्स थी, मतलब प्रीवियस जितनी स्ट्रिंग थी, उसको तुम पूरा कवर कर चुके हो, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम सम jth इंडेक्स जहां पर मान लो लास्ट तुमने अपना यू नो प्रोसेस करना छोड़ा था, एंड लेट से यू एंड अप एट आई, राइट, और यहाँ पर कहीं आईडीएक्स ऑफ आई आया होगा, राइट, मतलब ith कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, तुम्हें पता है कि भाई ये तो मुझे पता लग गया नाउ। सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारे पास कोई रिपीटिंग होने वाला होता तो तुम्हें इसके बीच में ऑलरेडी मिल गया होता। यू नो कि ith जो है, ith कैरेक्टर जो ith इंडेक्स पे कैरेक्टर है, दैट इज द फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर इन दिस सबस्ट्रिंग, राइट। इसका मतलब है यू कैन एक्चुअली स्टॉप योर प्रोसेस फॉर दिस सबस्ट्रिंग, और नेक्स्ट ऑनवर्ड्स तुम i प्लस वन से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। देखो तुम्हें बेसिकली यू आर मोर फोकस्ड अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स यू कैन मेक, राइट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सी सबस्ट्रिंग बना रहे हो, ठीक है, और कैसे बना रहे हो। the main focus of the question is how many non overlapping can you make, right? So अगर तुमने कोई j से i तक की सबस्ट्रिंग को बेसिकली प्रोसेस कर लिया है, जहां पर तुम्हें मान लो एक आंसर मिल गया है, सो इंस्टेड ऑफ रीचेकिंग अगेन कि मुझे कोई और आंसर इस रेंज में मिल जाए, व्हाट यू डू, यू जस्ट ड्रॉप दिस रेंज एंड यू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू रेंज दैट इज फ्रॉम i प्लस वन, फिर तुम i प्लस वन से प्रोसेस करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। इन दिस वे दिस इज बेसिकली द greedy टेक्निक, एंड यू वुड बी एबल टू फॉर्म योर आंसर। ये एग्जांपल बेटर लेके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन, अभी एक एग्जांपल था बी सी डी ए बी। अच्छा ये देखो, व्हेन आई स्टार्ट प्रोसेसिंग दिस होल स्ट्रिंग, सबसे पहले इनको नंबर कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो सबसे पहले बी का इंडेक्स आ जाता है 0, सी का इंडेक्स आ जाता है 1, एक डी का आता है 2, एंड देन ए का आ जाता है क्या? 3, ओके। फिर जैसे ही तुम फोर्थ इंडेक्स पे आते हो, जैसे ही तुम फोर्थ इंडेक्स पे आते हो, व्हाट यू सी? ए हैज अकर्ड अगेन, ए हैज अकर्ड अगेन। व्हाट व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि सेम रिपीटिंग कैरेक्टर, सेम स्टार्टिंग और एंडिंग स्ट्रिंग है, बट इज द लेंथ ऑफ दिस सब स्ट्रिंग बिगर देन 4? व्हाट यू डू, यू चेक 4 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, ये करंट इंडेक्स है, दिस इज आईडीएक्स ऑफ ए, और प्लस 1, व्हाट यू गेट? यू गेट एज व्हाट 2, सो यू कैन सी इट इज लेस देन 4, जिसका मतलब दिस इज नॉट अ वैलिड सब स्ट्रिंग फॉर आवर आंसर टू काउंट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे, वी विल मूव टू फिफ्थ इंडेक्स। एट द सेम टाइम याद रखना, वी विल नॉट अपडेट द इंडेक्स ऑफ ए, क्यों? सिंपल सी बात है, तुम देखो तुम ए को शिफ्ट करते जाओगे ना, तो तुम बड़ी स्ट्रिंग नहीं बना पाओगे। व्हाट यू शुड डू इज, वंस यू फाइंड अ कैरेक्टर, यू शुड फिक्स इट्स इंडेक्स, ठीक है, उसका इंडेक्स वहीं रहना चाहिए। अगर दोबारा वो रिपीट भी हो रहा है तो उसका इंडेक्स अपडेट मत करो, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें लंबी से लंबी सब स्ट्रिंग बनानी है, राइट, सच दैट कि भाई तुम जल्दी से जल्दी 4 को क्रॉस कर पाओ। नाउ व्हाट यू डू, यू बेसिकली मूव टू 5 अगेन, व्हेन यू मूव टू 5 यू अगेन फाइंड ए। फिर से हम देखते हैं, करेंट इंडेक्स इज 5, लास्ट अकरेंस ऑफ ए वाज व्हाट 3, 5 माइनस 3 प्लस 1 इज व्हाट 3, यानी कि ये वाली सब स्ट्रिंग। सो वी कैन सी अगेन इट इज लेस देन 4, तो भाई आंसर पॉसिबल नहीं है, सॉरी, ओके कोई बात नहीं। वी मूव टू सिक्स्थ, व्हेन वी मूव टू सिक्स्थ इंडेक्स वी कैन सी अगेन इट्स व्हाट ए। जैसे ए आया, व्हाट यू डू, यू बेसिकली 6 माइनस 3 प्लस 1, वी गेट 4, वेरी गुड, वी हैव पास्ड आवर कंडीशन। सो क्या करेंगे, वी जस्ट इंक्रीमेंट आवर आंसर वैल्यू बाय 1, ठीक है, एंड आंसर बिकम्स 1, ठीक है। और जैसे हमें अपना एक मतलब एक वैलिड आंसर मिल जाएगा, वी कैन एक्चुअली ड्रॉप दिस कंप्लीट सबस्ट्रिंग। अब इसको दोबारा चेक करने की या फिर से रीवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, ओके, देयर इज नो नीड, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें देखो आंसर मिलना होता ना तो तुम्हें पहले ही मिल चुका होता, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग दिस कंप्लीट सबस्ट्रिंग,
इंस्टेड ऑफ मतलब ये वाला जो वो है सबस्ट्रिंग है, इसको और एक्सटेंड करने की जगह यू कैन डायरेक्टली ड्रॉप, इसको ड्रॉप करो और i+1 जो कि बेसिकली सेवेंथ इंडेक्स है, वहां से प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो. इन दिस वे बेसिकली यू ग्रीडीली कीप ऑन चेकिंग, you know greedily keep on updating your values, and you finally will get your answer. ठीक है, लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन. Yep. So here you can see what we have done. So first we basically, take the size, then we basically take the index one, right? Then what do you check? If C of word of I minus A is not equal to -1. So basically we can see we have initially declared as -1 क्योंकि भाई index 0 से शुरू होता है. So we have taken a default value. So if it has occurred previously, ठीक है, क्योंकि अगर -1 नहीं है इसका मतलब पहले कभी ना कभी आया है. At the same time, if the length of this substring is greater than equal to 4, then we can update our answer. ठीक है, और क्या करेंगे, फिर से जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके इंडेक्स को -1 कर देंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश रेंज, दैट इज फ्रॉम i+1. इसलिए सबको रीइनिशियलाइज कर देंगे -1 से, कि भाई अब इतनी हमने सबस्ट्रिंग देख ली है, अब हम आगे की i+1 से जो शुरू होती है हम उसको एक्सेस करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, राइट? Now what do you do? And let's say if this is not the condition, then what do? You basically check if it is equal to -1. जैसा कि मैंने कहा कि in the last case that we saw कि a मल्टीपल बार आ रहा था, but at the same time उसका जो सबस्ट्रिंग का साइज था वो एक्चुअली में जो हमारा जो 4 वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था. दैट्स व्हाई वी हैड टू मूव फॉरवर्ड. पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें इंडेक्स को भी अपडेट करना है, इंडेक्स को वही रहने दो जो सबसे पहले उसका अकरेंस आया था, राइट? सो व्हाट डू वी डू? इवन इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, वी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया ये पहली बार आ रहा है. If this character is occurring for the first time, you update its index. If not, then there is no need to update its index क्योंकि तुम्हें लंबा से लंबा सबस्ट्रिंग वैसे भी बनाने की कोशिश करनी है, right? And then you basically done your answer. I'll just run the piece of code, and yep. So you can see it passes all the test cases. Okay. और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया व्हाट, वी कैन सी इट साइज n और 26 का अंदर, सो आई मीन इट्स 26 into n, राइट? ऑर्डर n ओनली, राइट? सो इट्स अ लीनियर टाइम प्रॉब्लम. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर 1 ही है बिकॉज वी हैव यूज्ड अ 26 साइज array, not a problem. Okay, now let's move to the as I said ki first two problems are very easy, literally very easy. Okay, then we go to the third problem. Now from third problem things are not yet very difficult, but still okay, we have leveled up because we have moved to trees. Okay, what do we have? Number of ways to assign edges weights 1. Okay, there is an undirected tree with n nodes labeled from 1 to n rooted at node 1. The tree is represented by a 2D integer array edges of length n-1, where edges of I equal to ui comma vi indicates that there is an edge between ui vi. Okay, very good. Tree hai, n-1 edges hai. Remember, initially all edges have a weight of 0. Okay, you must assign each edge a weight of either 1 or 2. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. We can only assign a weight of 1 or 2 to an edge. ठीक है. The cost of a path between any two nodes u and v is the total weight of all edges in the path connecting them. So कोई भी नोड u और v लेते हो तो उस बेसिकली उनके पाथ का कॉस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल एजेस. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? सेलेक्ट एनी नोड x एट द मैक्सिमम डेप्थ. ओके, कोई भी नोड x चूज करो जो कि तुम्हारे ट्री पे मैक्सिमम डेप्थ पे है. याद रखना हमारे पास एक रूटेड ट्री है. व्हाट वी हैव अ रूटेड ट्री जो कि 1 पे रूट होता है, राइट? वी नो कि हमें 1 से देखना है अपनी चीजों को. ठीक है, लेबल फ्रॉम 1 to n. इट्स ऑल्सो सेट कि हमको क्या करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू असाइन एज वेट्स इन द पाथ फ्रॉम नोड 1 to x. जैसे तुमको नोड 1 to x बोला, तुमको समझ में आ गया कि इसका रूट जो होना चाहिए वो नोड 1 होना चाहिए, राइट? तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ वेज सच दैट यू असाइन ईच एज वेट्स इन द पाथ फ्रॉम नोड 1 to x सच दैट द टोटल कॉस्ट इज ऑड. तुम्हें उतने तरीके बताने हैं सच दैट कि तुम्हारा जो पाथ है 1 से लेके x तक का, x बेसिकली कोई भी नोड हो सकती है जो कि मैक्सिमम डेप्थ पे है, राइट? तो मैं बताने कितने नंबर ऑफ वेज है सच दैट यू असाइन द वेट्स टू द पाथ टू द एज ऑफ टू ईच एज इन ऑन दैट पाथ सच दैट माय टोटल कॉस्ट ऑड है. क्या है? ऑड है. याद रखना हमारे पास सिर्फ 2 और 1 ही है. इसका मतलब डायरेक्ट पहला तो हिंट जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाट वी कैन डू, कि जितनी बार तुम 2 को ऐड करोगे इट ओनली रिजल्ट्स इन इवन नंबर्स. 1 जो तुम्हारा है वो बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर है, राइट? 1 is basically the number that decides if your cost of the path would be odd or even, क्योंकि 2 तो भाई इवन ही देगा, राइट? 2 को जितनी बार भी ऐड करोगे वो इवन होगा. 1 को अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करोगे तो इवन आएगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करोगे तो ऑड आएगा. वेरी गुड. सिंस बिकॉज दिस आंसर इज वेरी लार्ज वी कैन रिटर्न 10 की पावर 9 plus 7 से मॉड. ओके, इग्नोर ऑल एजेस नॉट इन द पाथ फ्रॉम नोड 1 to x. ओके, पहले सबसे पहले समझते हैं टेस्ट केसेस से. सो वी हैव गॉट दिस स्मॉल ट्री 1 से 2, और 1 हमारा एज वी सेड कि इट्स रूट. सो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली 1 से 2 पे जाते हैं. सो वी कैन सी कि एक ही एज है, राइट? सो एक ही एज है तो यहाँ पर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा. इफ वी टेक 2
तो जो पाथ होगा उसका कॉस्ट ऑड आ जाएगा, उसका कॉस्ट इवन आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। द नेक्स्ट केस इज कि हम वन रखते हैं। इफ वी प्लेस वन हियर, व्हाट डू वी सी, कि भाई हमारा जो कॉस्ट ऑफ द पाथ होगा दैट विल बिकम ऑड। ठीक है, सो वी कैन सी कि क्योंकि दो ही तरीके थे, दो में से सिर्फ एक ही तरीका एक वैलिड तरीका है, राइट? सो देयरफॉर वी कैन सी वी ओनली हैव ओनली वन वे टू असाइन दिस द वेट्स टू द एज ऑफ to each edge such that the total cost is odd। ठीक है, देन वी गो टू द सेकंड टेस्ट केस। वी हैव 1 2 3 4 5 इस टाइप का बना हुआ है। सो व्हाट हियर वी कैन सी, हमारे पास जो ट्री है उसमें दो ऐसी नोड्स हैं जो कि मैक्सिमम डेप्थ पे है। रिमेंबर इट सेड वी हैव टू चूज ओनली वन नोड जो कि मैक्सिमम डेप्थ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम डेप्थ पे कौन है? 4 और 5 दोनों के दोनों है, विच आर एट अ डेप्थ ऑफ 2। ठीक है, नाउ अब तुम बेसिकली इनमें से कोई भी एक नोड चूज कर लो, कोई भी एक नोड चूज कर लो। मान लो 1 3 4 लो या 1 3 5 ले लो। ठीक है, तुम्हें सिर्फ एक ही पाथ चूज करना है, दोनों पाथ को चूज नहीं करना है। रिमेंबर एक ही पाथ चूज करना है। सो लेट्स से आई चूज 1 3 4। अगर मैं 1 3 4 लेता हूं तो उसको कितने तरीकों से आई कैन असाइन वेट टू ईच एज सच दैट टोटल कॉस्ट इज व्हाट, इट्स ऑड। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इफ आई प्लेस 1 एंड 1 नहीं हो सकता, 2 एंड 2 नहीं हो सकता। ओके, आई हैव 1 एंड 2, 2 एंड 1। अगर मैं 1 से 3 को 1 कर दूं, 3 से 4 को 2 कर दूं, 1 प्लस 2 इज 3, ऑड, वेरी गुड। अगर मैं 1 से 3 को 2 कर दूं और 3 से 4 को 1 कर दूं, सो इट्स अगेन 3, अगेन ऑड। सो वी कैन सी अमंग ऑल द वेरियस टेक्निक्स, बेसिकली हर एक एज को तुम कितने कितने तरीके हैं, यू कैन असाइन टू वेज। सो बेसिकली 2 फॉर दिस एज, 2 फॉर दिस एज, दे आर टोटल 4 वेज। 4 में से सिर्फ दो ही ऐसे वैलिड वेज हैं जिसमें तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट आएगा वो ऑड आएगा, राइट? So that's why the total number of possible ways is what, 2। ठीक है, तो रिमेंबर हम सिर्फ एक ही नोड को ले रहे हैं जो कि मैक्सिमम डेप्थ पे है, राइट? एंड फिर हम बेसिकली बेस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब सबसे पहले इसको ना समझते हैं कि भाई इसको करना कैसे है। ठीक है, किस चीज पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्री है, जैसा मान लो ये है। ओके, तो सबसे पहले तो इनकी डेप्थ जो है ना, ये मान लो नोड 1 है, और बेसिकली ये जितनी भी नोड्स हैं, ऑल दीज नोड्स, ठीक है, ठीक है, ये क्या है? टर्मिनल नोड्स है, राइट? अब टर्मिनल नोड से हमको वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ओके, वी बेसिकली वांट द सबसे सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स मार्क द डेप्थ ऑफ ईच नोड। ठीक है, हर एक नोड का डेप्थ मार्क कर देते हैं। दिस एट डेप्थ 1, इसका डेप्थ 0 है, ये भी 1 पे है, ये 2 पे है, दिस ऑल्सो 2 2 2 3 3 3। सो वी कैन सी हमें क्या करना था, वी हैड टू चूज द नोड विद द मैक्सिमम डेप्थ, राइट? सो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन चूज एनी ऑफ दीज नोड्स। ठीक है, एंड एक्चुअली इन द प्रॉब्लम इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम कौन सी नोड को चूज कर रहे हो, चाहे तुम इसको चूज करो, चाहे तुम इसको चूज करो, चाहे तुम इसको चूज करो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एट द एंड यू आर ओनली कंसर्न अबाउट द पाथ लेंथ। ठीक है, तुम्हें बेसिकली लेंथ ऑफ द पाथ से फर्क पड़ता है, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सी नोड को उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि हर एक नोड का पाथ जो है ना, उसका वो तो सेम ही है ना। मतलब उसका अगर तुम डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, भाई देखो क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हर एक केस में तीन ही एज तुम्हें क्या कहते हैं, कवर करनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई दूसरी नोट अगर पकड़ लोगे तो तुम्हें 4 एज करनी पड़ रही है। सो बेसिकली जब हम मैक्सिमम डेप्थ वाली नोट चूज करें तो ऑलरेडी हमें पता है कि हम मैक्सिमम मतलब जो पाथ है वो सेम ही होगा। अगर सेम डेप्थ पे हो तुम, तो जो पाथ लेंथ होगा वो सेम होगा, और हमें एक्चुअली पाथ लेंथ के साथ ही डील करना है। ठीक है, पाथ लेंथ के साथ डील क्यों करना है इसको समझते हैं। लेट्स से मैंने इनमें से कोई भी एक मतलब पाथ उठा लिया। लेट्स से आई पिक्ड अप दिस पाथ। ठीक है, मैंने ये पाथ उठाया, तो बेसिकली ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी डेप्थ क्या है, 3 है। एंड वी कैन सी कि बेसिकली 3 का मतलब क्या बन रहा है, 3 का मतलब है कि 3 एज है। ठीक है, इसका डेप्थ जब 3 आया, तो व्हाट वी आर एबल टू सी, वी कैन सी कि इसमें बेसिकली 3 एज आई हैं, राइट? दिस मीन्स कि तुम्हारे पास 3 प्लेसेस है जहां पर तुम अपने वैल्यूज को या फिर एज को वेट असाइन कर सकते हो, राइट? इट्स समथिंग लाइक दिस, कि भाई ये है, ये है, ये है, दीज आर 3 ब्लैंक्स जहां पर तुम 2 या 1 रखने वाले हो, राइट? एंड व्हाट शुड बी द वैलिड क्राइटेरिया, कि इन सबका वेट जब तुम प्लस करो, what you get is basically what you basically total is what, total should be odd। तुम्हें ये देखना है, राइट? तुम्हें ये चेक करना है। सो देख सकते हो कि दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ इट हैज एक्चुअली मूव फ्रॉम अ ट्री प्रॉब्लम टू अ मैथ प्रॉब्लम। ये तुम्हारा पीएनसी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जरूरी क्या है। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फिल इन दिस 3 ब्लैंक्स सच दैट द टोटल सम इज एक्चुअली एन ऑड नंबर। बस यही तुम्हें करना है। यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फिल दीज ब्लैंक्स बाय 1 और 2 सच दैट द फाइनल
टोटल वेट इज बेसिकली एन ऑड नंबर, तुम्हें यही पता लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 1 और 2 है। तुम्हें पता है, जैसे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, 2 को तुम जब भी ऐड करते हो, 2 क्या करता है, 2 पैरिटी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मानो तुम किसी ऑड नंबर में 2 ऐड करोगे तो वो ऑड रहेगा, किसी इवन नंबर में अगर तुम 2 ऐड करोगे वो इवन रहेगा। तो दिस मीन्स कि 2 डज नॉट हैज द एबिलिटी टू चेंज द पैरिटी ऑफ अ नंबर। ठीक है, वो कभी भी ऑड को इवन या इवन को ऑड नहीं बना सकता। इट विल ऑलवेज मेक द नंबर इन द सेम डोमेन, कि अगर ऑड है तो ऑड ही रहेगा, इवन है तो इवन ही रहेगा। पर पर यहां पर जो तुम्हारा नंबर 1 है, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। क्यों? क्योंकि दिस कैन एक्चुअली चेंज द होल गेम। ये तुम्हारा वेट को ऑड इवन कर सकता है। अगर तुम्हारा ऑड है तो वेट को इवन कर देगा, अगर इवन है तो वेट को ऑड कर देगा। राइट। सो अच्छा, तुम्हें ये बताओ, लेट से तुम्हारे पास n प्लेसेस हैं, तुम्हारे पास n ब्लैंक्स हैं, ऐसे दिए हुए हैं, राइट। और तुम्हें बताना है कि भाई, अ, तुम्हें बताना है कि आई हैव टू, कि इनमें वैल्यूज पुट करनी है, सच दैट कि टोटल सम जो है वो तुम्हारा क्या है, ऑड आए। ठीक है, सो वी नो कि 2 को तुम चाहे जितनी बार रखो, 2 को तुम चाहे जितनी बार रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट इफ यू वांट योर फाइनल सम टू बी ऑड, 1 कितनी बार आना चाहिए? 1 शुड कम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। देखो, 2 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, लेट्स से अगर तुम 2 को k टाइम्स भी प्लस करते हो, यू विल गेट 2k, जो कि इवन है। 1 में मेन चीज है, 1 को अगर तुम क्या कहते हैं, k टाइम्स ऐड करते हो, अगर तुम्हारा k इवन होगा तो तुम्हारा क्या, ये फाइनल जो सम होगा वो भी इवन होगा। अगर k ऑड है तो बेसिकली फाइनल सम भी ऑड होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, इफ वी वांट आवर फाइनल सम टू बी ऑड, वी शुड ओनली ऐड वन वी शुड ओनली ऐड वन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा ये ब्लैंक्स है, इसमें हमको 1 को सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्लेस करना चाहिए। मतलब क्या, अगर तुम्हें बेसिकली चूज करना है तो 1 को तुम या तो सिर्फ एक बार चूज करोगे, या तो 3 बार चूज करोगे, या तो 5 बार चूज करोगे। कहने का मतलब क्या है कि या तो तुम 1 को सिर्फ एक ब्लैंक में रखोगे, या तो तुम 1 को 3 ब्लैंक्स में प्लेस करोगे, या तो 5 ब्लैंक्स में प्लेस करोगे, या तो 7 में, या तो 9 में। राइट, क्योंकि बाकियों में तो 2 है, बाकियों में 2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो इवन दे रहा है। जब तुम 1 को ऑड नंबर ऑफ ब्लैंक्स में रख रहे हो, तो तुम डायरेक्टली क्या करो, फोर्स कर रहे हो योर फाइनल सम टू बी ऑड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी हैव n ब्लैंक्स, ठीक है, सब्जेक्ट वी हैव टू मेक द सम ऑड। सो हमें क्योंकि 1 को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करना है, सो व्हाट डू वी डू, टोटल नंबर ऑफ बेसिस बेसिकली व्हाट, ठीक है, टोटल बेसिस व्हाट, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, ऐसे करते करते फॉर अप टिल जो भी तुम्हारा तुम्हारा जो भी ऑड नंबर बन रहा है, सच दैट 2k प्लस 1 इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा आंसर है। दिस इज एक्चुअली व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। तुमने n निकाल लिया, ठीक है, एक मिनट। हम्म, तुमने n निकाल लिया, ठीक है, और तुम्हें फिर ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये n यहाँ पर है क्या, ये n बेसिकली तुम्हारी डेप्थ है, डेप्थ यू गॉट, दिस इज द मैक्सिमम डेप्थ दैट यू गॉट प्रीवियसली। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5। ठीक है, ये 135 क्यों ले रहे समझ में आ गया, बिकॉज वी कैन ओनली टेक वन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, सो दैट वी कैन एंश्योर कि हमारा जो टोटल वेट आ रहा है वो ऑड आ रहा है, राइट। तो ऐसे nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस nc ऐसे करते जा सकते हो ऑड नंबर्स के लिए, राइट। सो आई थिंक ये बहुत सिंपल, बहुत मतलब आ गया। अब कोई महानुभाव होगा जिसके दिमाग में आएगा, अच्छा ओके हमें ये करना है, तो ऐसा करते हैं, एनसी की जो कॉम्बिनेशन है ना, nc1 nc3 nc5, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका एक तरीका होता है, बट इज इट नेसेसरी? मुझे ये बताओ, क्या ये करना नेसेसरी है? इज इट नेसेसरी टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज? अगर तुम एनसी कैलकुलेट करके भी आंसर निकालोगे ना, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या ये वर्थ इट है, क्या इसको वैसे करना जरूरी है? क्या मैं इसको किसी और तरीके से नहीं कर सकता? इज इट नॉट वेरी सिमिलर टू एन आइडेंटिटी, जो कि हमने अपने 11th 12th क्लास में पढ़ी है? एंड वॉट इज दैट आइडेंटिटी? याद करना बड़े अच्छे से, ठीक है। वॉट वी आर डूइंग बेसिकली, वी आर डूइंग nc1 plus nc2 plus nc3 plus nc5 plus nc of odd numbers, right? nc of odd numbers, correct, until we move to whatever, until we do not exceed n, right? At a similar time, यहां पर तुम्हारा एक वो होता था nc2 plus nc4 plus nc6, ऐसे करते करते nc इवन। ठीक है, अच्छा मुझे पहले ये बताओ, ये सबने पढ़ा होगा, राइट, 1 + 1 की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? इसका एक्सपेंशन बेसिकली nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ऐसे कर करके आता है अप टिल ncn तक, करेक्ट। ये बायनोमियल थ्योरम है, आई थिंक अगर किसी को नहीं पता है तो यू कैन गो एंड रिवाइज, बिकॉज ये तो पता होना चाहिए भाई, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, 1 + 1 की पावर n करोगे तो इट एक्सपैंड्स लाइक दिस, राइट, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। ठीक है,
अच्छा, और ये इक्वल किसके होता है, इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो एनसीज की वैल्यूज है, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इनका जो समेशन होता है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 की पावर n। करेक्ट। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं इन सब से आधे नंबर हटा दूं, लेट्स से इफ आई रिमूव द इवन वंस, ठीक है, सो व्हाट डू आई गेट व्हाट, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, ऐसे करते करते सारे ऑड नंबर्स, और हमने क्या किया, हमने आधे नंबर हटा दिए, तो क्या हो जाएगा, दिस शुड बी 2 की पावर n-1, राइट। ये है भाई पूरा गेम, ठीक है। तुम्हें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जो कि बताती है कि nc1 इफ यू टेक द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स, ठीक है, nc1 nc3 nc5 यू विल गेट 2 की पावर n-1। सेम गोस फॉर द इवन, अगर तुम nc0 प्लस nc2 प्लस nc 4 प्लस nc6 ऐसे करते जाओगे, ये भी 2 की पावर n-1 के बराबर ही होता है। जब इन तुम दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट 2 की पावर n, राइट। So instead of calculating these all coefficients in this in this part, what you can do, तुम्हें जैसे ही डेप्थ मिल गई, just calculate 2 की पावर n-1, that would be your answer, that would directly be your answer, ठीक है। तुम्हें ये पूरे coefficients calculate करने की जरूरत नहीं है, you can directly calculate 2 की पावर n-1, which is way more easier and it is way more faster, ठीक है। आओ जरा इसका कोड पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट मेक आर ग्राफ। सबसे पहले अपना ट्री पूरा बनाते हैं, ठीक है, हमारा ट्री बन गया। उसके बाद व्हाट वी डू, वी फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ, राइट, वी फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। यहाँ मैक्स डेप्थ का फंक्शन है, व्हाट यू डू, यू बेसिकली आई थिंक मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करने का कोड, आई थिंक इट्स वेरी इजी, यू कैन एक्चुअली, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, यू कैन गो एंड चेक आउट दिस प्रॉब्लम, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ ट्री, ठीक है। देन यू बेसिकली रिटर्न v+1। सो मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, बेसिकली रिटर्न द नंबर ऑफ नोड्स। तो बेसिकली एक पाथ में जितनी नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, तो उसमें एजेस कितनी होती है, नोड-1, ठीक है। सो इसलिए व्हाट डू, आई फर्स्ट गेट द मैक्सिमम डेप्थ एंड देन आई टेक -1 फ्रॉम इट, बिकॉज बेसिकली इसे नंबर ऑफ नोड्स काउंट करी है, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस नहीं काउंट करी है। सो लेट्स से मेरे अगर पाथ में n नोड्स हैं, तो n-1 एजेस होंगी, ठीक है। तो व्हाट डू, आई फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ, जो कि बेसिकली ये वैल्यू होगी, एंड देन आई बेसिकली रिटर्न 2 की पावर d-1, ठीक है। यहाँ पर d-1 मैंने भेज दिया है 2 की पावर d-1 कैलकुलेट करने के लिए। एंड आई थिंक दिस बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, ये अगर किसी को पता है तो ठीक है, इफ यू डू नॉट नो अबाउट दिस टेक्निक, दिस एक्चुअली वेरी गुड टेक्निक टू फाइंड पावर्स ऑफ अ नंबर व्हेन योर पावर्स आर वेरी बिग। लेट्स से अगर तुम्हें 2 की पावर 100 निकालना है, तो या फिर 2 की पावर 100 मिली, 2 की पावर लेट्स से तुमको 2 की पावर 10 की पावर 9 निकालना है, ठीक है, 2 की पावर 1 बिलियन निकालना है, 1 बिलियन, तो उसमें तुम फॉर लूप रन नहीं कर सकते। इन दैट केस यू बेसिकली यूज बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, which will be efficiently calculate your 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर y। तो यहाँ पर हम 2 की पावर d-1 को कैलकुलेट करते हैं एंड वी रिटर्न एन आंसर। ऑल्सो यू कैन सी, जो हमें आंसर मिले थे वो भी ऐसे ही थे। द आंसर वाज 1 which is 2 की पावर 0, वी गॉट 2 की पावर, when we got 2 which is 2 की पावर 1, राइट। जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 एजेस हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 2 की पावर 2 minus 1, 2 minus 1 is what, 1, तो 2 की पावर 1 is what, 2। तो दैट्स व्हाई वी कैन सी कि डायरेक्टली भी मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज एक्चुअली अ गुड प्रॉब्लम, ठीक है। आई मीन कॉन्सेप्ट वाइज इट वाज एक्चुअली वेल रिटन, इसमें काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है एंड कॉन्सेप्ट भी अच्छा था इसमें। आपकी मल्टीपल चीजें टेस्ट में, एट द सेम टाइम इट आल्सो टेस्टेड योर बेसिक मैथ्स, ठीक है। आपको यहाँ पर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने बैठता है, इंस्टेड ऑफ ही वुड हैव सीन कि भाई ये समेशन जो है वो 2 की पावर n-1 के बराबर होता है, राइट। सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, राइट। So yeah, I think this was a good problem. The overall time complexity is what? I think that overall time complexity is order n, because you do a DFS to find the maximum depth. ठीक है, and then you basically are using a binary explanation which takes log n time. And I mean, since d के ऊपर काम कर रहे हैं, तो it's log d. But in the worst case we know कि हमारा ट्री ऐसा हो सकता है कि सिंगल ट्री है, तो डेप्थ भी n के बराबर हो सकती है, तो overall time complexity is still linear, ठीक है, it's order n, ठीक है, and in order n we were able to find our answer. So I think this clears the problem number 3. Okay, so तीन problems हो गए cover. Let's go to the final problem of the day, or the hardest problem which was present in the uh, this contest, which was the same problem but with some additional constraint. ठीक है, constraint change नहीं हुए हैं, अभी भी 10 की पावर 5 ही हैं। The change is कि अब हमें queries दी गई हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी वर सेट कि हमारे पास नोड 1 जो हमारा है वो रूट है, एंड वी नीड टू फाइंड कि नोड 1 से लेके x तक का पाथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे वो भी हक छीन लिया है, हमें कहा गया है कि हमें कोई दो नोड दी जाएंगी u और v, जो कि ट्री में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होंगी, हमें उनका पाथ निकालना है और फिर हमें
अपना आंसर फाइंड करना है, राइट? अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है? व्हाट वी आर गिवन, दिस अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है? आई थिंक इतना कवर हो ही चुका है। यू आर गिवन 2D इंटीजर एरे क्वेरीज फॉर ईच क्वेरीज ui, vi, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज टू असाइन वेट्स टू एडजेसेंट पाथ और इवेंट, ठीक है? तो इस बार तुम्हारी क्वेरीज भी आ गई है, राइट? तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही पड़ जाती है कि भाई तुम्हें क्वेरी को भी फुलफिल करना है, ठीक है? और यहाँ पर तुम्हारा यूआई कुछ भी हो सकता है और वीआई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एंड हर एक क्वेरी के लिए तुम्हें आंसर डन करना है एंड 10 की और 9+7, ताकि क्योंकि बहुत आंसर बड़े हो सकते हैं। एंड द सेम एग्जांपल्स हैव बीन रिपीटेड अगेन, ठीक है? बट इस बार देखो क्वेरीज भी आ गई हैं, ठीक है? लाइक देखो पहला 1 से 4 है। जब 1 से 4 तक का पाथ लेते हो तो इट्स जस्ट एज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ठीक है? लेट्स टेक 3 एंड 4। जब हम 3 और 4 को ले रहे हैं तो क्या है, दिस इज यूआई, दिस इज वीआई, तो सिर्फ एक ही एज बीच में है, राइट? एक ही एज बीच में है, इसका मतलब क्या होगा, यू कैन ओनली असाइन व्हाट 1, क्योंकि सिंपल सी बात है 2 असाइन नहीं कर सकते, सो देयर इज ओनली वन वे। याद रखो जो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 वाला वो बन रहा था वो अभी भी वैलिड है। इस केस में क्या करोगे, हर एक क्वेरी के लिए पहले तुम डिस्टेंस फाइंड कर लो कि तुम्हारा जो यूआई और वीआई है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, राइट? यू फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है? लेट्स से डी आया, ठीक है? तो तुम्हारा जो भी डी आया है, बेसिकली डी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एजेस, राइट? ठीक है? जब भी मैं पाथ लेंथ बोल रहा हूँ, इट मींस कि नंबर ऑफ एजेस कितनी है यूआई से लेके वीआई तक के बीच में। सो व्हाट यू डू, बेसिकली यूआई और वीआई के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लिया तुमने, ठीक है? और यू जस्ट उसके बाद क्या करना है, 2 की और D-1 करना है, ठीक है? वो जो पार्ट था ना, फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? पाथ चाहे ऊपर से नीचे हो चाहे लेफ्ट से राइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैथ्स तो फिर भी सेम ही रहेगी ना, पाथ लेंथ तो फिर भी सेम है, असाइन जो करना है तुम्हें 1 और 2 को वो तो फिर भी सेम रहेगा, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर बस डिफिकल्ट पार्ट ये हो गया है कि हाउ डू यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री, ठीक है? वो भी एफिशिएंटली, क्योंकि सिंपल सी बात है मल्टीपल क्वेरीज है तो तुम देखो डिस्टेंस फाइंड करने को तुम q इंटू एन में कर सकते हो, पर वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, वो चलेगा नहीं, वो टेल ही दे देगा। यू नीड टू फाइंड एफिशिएंटली द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स, ठीक है? वो कैसे करेंगे उसको समझना है, बाकी जो नंबर ऑफ वेज फाइंड करने का तरीका है दैट इज स्टिल द सेम, ठीक है? सो लेट मी ब्रिंग यू टू अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? सबसे पहले इसको समझते हैं। लेट से हमारे पास एक ट्री है, ठीक है? लाइक दिस, ठीक है? हमारे पास एक ऐसा ट्री है, राइट? अब मुझे मैं एक कोई भी दो नोड ले लेता हूँ, ओके? दो नोड्स, लेट्स से दिस इज यू, दिस इज यू एंड दिस इज वी, ये वी है। मुझे इन दोनों का पाथ का डिस्टेंस निकालना है। सो बाय डायरेक्टली सीइंग वी कैन सी कि यू और वी के बीच में जो पाथ है वो यही हो सकता है। ऑल्सो क्योंकि ये ट्री है तो किसी भी दो नोड्स के बीच में सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है, राइट? ऑलवेज एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट? सो वी कैन सी इंट्यूटिवली कि यू और वी के बीच में जो पाथ है वो बेसिकली ये है। और इसमें कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 की पावर 3 विच इज 8, ठीक है? पर मेन बात है, ये तो चलो ठीक है कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैसे निकालें, ये कैसे निकालें, ये चीज कैसे निकालें? ओके, लेट मी चेंज दिस, ओके। ये जो पाथ लेंथ है ये कैसे निकालेंगे, ठीक है? इसको समझते हैं। व्हाट हैपेंड, 1 2 3, ओके। मुझे मान लेते हैं कि ये हमारा रूट है, ठीक है? जस्ट रिमेंबर, जस्ट टेक दिस अंडरस्टैंडिंग कि लेट्स मार्क दिस नोड एज अ रूट, ये हमारा रूट है, ठीक है? जब हमने ट्री को रूट कर दिया इसका मतलब क्या है, ये हमारा हेड है कुल मिला के टोटल, ठीक है? अब देखो, अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन यू टू वी फाइंड करना है, सो व्हाट आई कैन डू, इट आई कैन ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, आई कैन ब्रेक इट इन टू पार्ट्स। सबसे पहले डेप्थ ऑफ व्यू, ठीक है? अगर मैं इसका पाथ निकाल लूं, ये तो मैं निकाल सकता हूं ना इजिली, और प्लस मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूं, तो इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही तो मेरा डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है? तो क्या कर सकते हो, फॉर एनी टू नोड्स u comma v, what you can say, the distance between u comma v is equal to depth of u, ठीक है? जब हम डेप्थ बोल रहे हैं तो बेसिकली हम रूट से देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पर रूट मार्क कर दिया ना, इससे हम अपनी क्या कहते हैं उसको देखते हैं डेप्थ को, ठीक है? डेप्थ ऑफ u प्लस डेप्थ ऑफ v, ठीक है? और माइनस यहाँ पर कुछ कंपोनेंट होगा, उसको लिख लेते हैं x मान थोड़ी देर के लिए, वो समझते हैं वो x क्या होगा, ठीक है? ये तो मान लो एक इजी वो था, इजी दो नोट्स थे, तो आई थिंक इसमें उतना बड़ा वो बना नहीं। लेट से मैं कुछ और लेता हूँ, लाइक मान लो जैसे मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, ये दो नोट्स ले ली। अच्छा अब देखो, एक पाथ जो है वो ये है,
और रूट से लेके वी तक का पाथ ये है। तुम देख सकते हो दोनों का पाथ सेम है। अच्छा मुझे ये बताओ, दिस दिस रीजन जो ये हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, ये फालतू नहीं है। दिस इज फालतू, राइट? दिस इज अननेसेसरी, दिस इज यूजलेस, राइट? इसको मान लो मैं मार्क भी करके दिखा देता हूँ। मतलब कुछ अच्छा कलर ले लेते हैं। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। ठीक है। अच्छा एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? एक्चुअल डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ है यू से लेके वी तक का, वो तो यही है ना, वो तो सिर्फ यही है। बट हम इसको क्योंकि डेप्थ के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं तो हमने क्या किया, डेप्थ ऑफ यू, डेप्थ ऑफ यू मतलब ये तुम्हारा 4, ठीक है, प्लस डेप्थ ऑफ वी माइनस ये वाला पार्ट, माइनस ये वाला पार्ट, करेक्ट? ये वाला पार्ट क्या है बेसिकली? ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज, ये जो एक्स्ट्रा पाथ आ रहा है इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? तुम इस नोट पे ध्यान दो। ये नोट क्या है? दिस नोट इज बेसिकली और एलसीए। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर, एलसीए। ठीक है। तो जब भी तुम्हें कभी भी डिस्टेंस क्वेरीज आती है कि तुम्हें यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री, यू बेसिकली यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीए। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इन अ ट्री इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ यू प्लस डेप्थ ऑफ वी माइनस माइनस 2 times ऑफ डेप्थ ऑफ एलसीए ऑफ यू कॉमा वी। ये है बेसिकली तुम्हें जो फाइंड करना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड डेप्थ ऑफ यू। ठीक है, ये तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यू बेसिकली नीड टू फाइंड द एलसीए ऑफ दीज टू नोड्स यू कॉमा वी। ठीक है, क्योंकि इसके बीच का जो पाथ होता है यू कैन सी कि हम ये जो है रिडंडेंट पार्ट है, राइट, इसको रिमूव करना है। सो व्हाट यू डू, ये पूरा पाथ ऐड किया, ये पूरा पाथ ऐड किया, उसके बाद ये वाला पाथ हटा दिया। सो वट एवर यू गेट इज बेसिकली द रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन यू कॉमा वी। एक बार चेक भी कर सकते हो, वी कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी इज बेसिकली व्हाट, 1 2 एंड 3, राइट? सो यहां पर देखते हैं क्या होता है, 4 प्लस 3 माइनस 2 times ऑफ, अच्छा यू और वी का एलसीए कौन सा है? वो ये नोड है, वो ये नोड है, राइट? और इसका डेप्थ कितना है? इसका डेप्थ है 2, इसका डेप्थ है 2। सो 2 into 2, तो क्या आ जाएगा? 3 आ रहा है तुम्हारा, और यही हमारा डिस्टेंस नहीं था? दिस वॉज आर डिस्टेंस, राइट? तो तुम्हें बस यही करना है। सो हर एक के लिए एफिशिएंटली कैलकुलेट कैसे करोगे डिस्टेंस? यू फर्स्ट गेट द डेप्थ, आई थिंक नॉर्मल डीएफएस से यू विल बी एबल टू गेट द डेप्थ ऑफ ईच नोड। ठीक है, उसके बाद मेन चीज में क्या है, दिस विल बी, और ये तुम्हारा प्री प्रोसेसिंग में तुम्हें मिल जाएगा, ये भी तुम्हें प्री प्रोसेसिंग मिल जाएगा। द ओनली थिंग इज टू एफिशिएंटली कैलकुलेट एलसीए। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यहीं पर आता है। आई थिंक ये डिस्टेंस वाला जो पॉइंट था वो भी आई थिंक इज वेरी क्लियर। द मेन प्रॉब्लम नाउ कम्स कि एफिशिएंटली कैलकुलेट, एफिशिएंटली फाइंड एलसीए, फाइंड एलसीए ऑफ यू गामा वी। ठीक है, नॉर्मली एलसीए का जो तरीका होता है वो बेसिकली लीनियर टाइम का होता है। ठीक है, कि तुम अगर फाइंड करते हो इजी वे से, ठीक है, बट देयर आर एग्जिस्टिंग मेथड्स व्हिच आर वेरी एफिशिएंट इन कैलकुलेटिंग एलसीए। ठीक है, तुम एलसीए बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत एफिशिएंटली, इन लॉग एंड टाइम। तुम लॉग एंड टाइम में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आराम से। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर एन जो होता है वो डेप्थ ऑफ द ट्री होता है, बट इन द वर्स्ट केस अगेन वो एन हो सकता है, तो दैट्स व्हाई। ठीक है, सो इफ यू वांट टू फाइंड द एलसीए ऑफ एनी टू नोड्स यू कॉमा वी, यू कैन एक्चुअली फाइंड इट इन log n by using what, by using a technique known as binary lifting, बाइनरी लिफ्टिंग। इस टेक्निक को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, नॉट अ लॉट ऑफ, बट स्टिल उसके लिए थोड़ा सेटअप चाहिए। आई मीन थोड़ा डिस्कशन चाहिए, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, व्हाट यू कैन नॉट, थोड़ी थ्योरी और बतानी पड़ेगी एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इसका एक फेमस क्वेश्चन जो होता है वो बेसिकली है केथ एंसेस्टर इन अ ट्री। ठीक है, ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, सो बाइनरी लिफ्टिंग बेसिकली कैन फाइंड योर केथ एंसेस्टर इन लॉग एन टाइम। ठीक है, बाइनरी लिफ्टिंग टेक्निक कैन एक्चुअली हेल्प यू फाइंडिंग योर kth ancestor in log n टाइम। सो हम सेम चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर फाइंडिंग द लोएस्ट कॉमन ancestor बिटवीन एनी टू नोड्स। तो वी कैन फाइंड दिस इन log n। सो हमारी जो क्वेरी थी वो क्या थी? कोई भी क्वेरी आती है उसमें u कॉमा v आता है। ठीक है, हमारे पास डेप्थ ऑफ u है ऑलरेडी, जो कि हम पहले से ही प्री प्रोसेस करके रख लेंगे, डेप्थ ऑफ v भी निकाल लेंगे। हमारा बस बॉटल नेक आ रहा था एलसीए फाइंड करने का, राइट, एलसीए फाइंड करने का। ठीक है, और वो अब हम लॉग इन टाइम में कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, हमारा जो ओवरऑल टाइम हो जाएगा दैट विल रिड्यूस फ्रॉम क्यू इनटू लॉग इन, और जो कि आराम से पास हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर हार्ड पार्ट यही था। द हार्ड पार्ट वाज हाउ टू एफिशिएंटली कैलकुलेट द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू नोड्स यू कॉमा वी। यू कैन लुक इनटू बाइनरी लिफ्टिंग। ठीक है, आई थिंक आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टेक्निक वेरी सून।
जल्दी मैं बाइनरी लिफ्टिंग को कवर करूंगा, हाउ इट वर्क्स, हाउ वी इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। बट नेवरदलेस इस क्वेश्चन में ये लगने वाला था, राइट। सो बाइनरी बाइनरी लिफ्टिंग से आप एफिशिएंटली कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ योर एलसीए, एंड यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट योर डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स। और जैसे ही तुम्हारे पास ये डिस्टेंस आ गया, जैसे ही तुम्हारे पास ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है, व्हाट डू यू डू, ठीक है, इसको डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा पी कह लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास ये डिस्टेंस आ गया, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तुम्हें बस ये फाइंड करना है, क्योंकि ये तो आई थिंक ये तो जैसे हमने कहा कि दिस इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, राइट। नंबर ऑफ वेज तो वैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला पार्ट था वही थोड़ा ट्रिकी बन जाता है बिकॉज ऑफ द एलसीए। एलसीए एफिशिएंटली कैलकुलेट हो गया, तुम्हारा डेप्थ एफिशिएंटली कैलकुलेट हो गया, यू नाउ जस्ट हैव टू रिटर्न टू की पावर दिस ऑफ यू कमा वी माइनस वन, एंड इन दिस वे यू वुड बी एबल टू यू नो फाइंड ऑल योर क्वेरीज इन अ एफिशिएंट टाइम। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा क्यू इंटू लॉग इन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम्हारा अराउंड क्यू इंटू लॉग इन हो जाता है, राइट। आई जस्ट शो यू द कोड, इट विल बी मोर क्लियर। ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर। सबसे पहले सबसे पहले व्हाट डू वी डू, वी क्रिएट आर ग्राफ। ग्राफ बनता है, वी फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ जो कि पॉसिबल हो सकती है। सिंपल सी बात है, तुम्हारा ये लॉग बेसिकली दिस लॉग इज फॉर फॉर फाइंड फॉर इन द एंसेस्टर पार्ट। सो बेसिकली आई थिंक ये बाइनरी, जब आप बाइनरी लिफ्टिंग पढ़ोगे दिस विल बी मोर क्लियर। नेवरदलेस समझ लो, अभी के लिए समझ लो कि बेसिकली, अभी के लिए समझ लो कि व्हेन आई एम राइटिंग अप ऑफ जे, व्हेन आई एम राइटिंग दिस, व्हेन आई एम, ये अब बेसिकली क्या होता है, इफ आई राइट अप ऑफ आई जे, ठीक है, रिमेंबर दिस, ऐसा समझना कि व्हेन आई एम राइटिंग अप ऑफ आई जे, इट बेसिकली मींस 2 की पावर jth एंसेस्टर ऑफ ith नोड, ठीक है। ये बेसिकली अप आई जे जो होता है वो ये बताता है कि द 2 की पावर jth एंसेस्टर ऑफ ith नोड, बेसिकली इन बाइनरी लिफ्टिंग यू मेक जंप्स इन द पावर ऑफ 2, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक होती है, ये इस तरीके से काम करता है, दैट विल बी एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो, ठीक है। देन यू बेसिकली क्रिएट अ ग्राफ, एंड देन यू डू अ डीएफएस। डीएफएस में व्हाट डू यू डू, डीएफएस में यू फाइंड योर व्हाट, योर डेप्थ। सो डेप्थ आप फाइंड कर लेते हो हर एक नोड की, राइट। एंड यू आल्सो अपडेट योर अप टेबल, वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, दैट विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो व्हेन वी आर डिस्कसिंग बाइनरी लिफ्टिंग। एंड राइट, इससे डीएफएस पूरा हो गया हमारा अप टेबल। और जो तुम्हारा डेप्थ वाला टेबल है, डेप्थ वाला एरे है, दैट इज नाउ कंप्लीटली फुल फिल्ड, राइट, वो पूरा भर चुका है with the values. Now what you do, you just start processing your queries, ठीक है। You find your depth of u, you find depth of v, and then you return depth of get LCA. So then you go to get LCA function. This is the get LCA function where you can efficiently in log n time calculate the least common ancestor, lowest common ancestor of node x and y, ठीक है। ये कैसे काम करता है, दिस ऑल्सो comes from the binary lifting only, so I think that is part of the part of some other video, not just क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, right. And then after you are able to get the distance between the two nodes, then you return 2 की power d minus 1, that is your answer, and then you find return the answer, just run this piece of code, ठीक है। ये पास होता है, so we can see it passes all the test cases successfully, right. So this was basically the fourth problem जिसमें बाइनरी लिफ्टिंग यूज हुई। इट वाज एक्चुअली अ गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। इससे काफी, एक बाइनरी लिफ्टिंग बहुत ही भयंकर कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट या इससे एक रिवीजन भी आपको मिल जाता है। ओके, एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज क्यू इनटू लॉग एन, ठीक है, बिकॉज ऑर्डर इन लीनियर है, वो तो तुम्हारा डीएफएस करने में लगता है, बट फाइंड दिस क्यू इनटू लॉग एन, लॉग एन तुम्हारा एलसीए फाइंड करने में, एंड क्यू आर नंबर ऑफ क्वेरीज, राइट। Okay, so I think we are done with the bi-weekly contest. Overall, the contest was moderate. First three problems were actually easy and they were doable. The last problem could have been hard, but yeah, if अगर आप मान लो नेट पे रिसोर्सेज के लिए चेक करते, you would have been able to actually, मतलब कुछ केसेस तो आप चला ही लेते, ठीक है। नॉट इवन एफिशिएंटली, लेट से तुम्हें बाइनरी लिफ्टिंग नहीं पता है, तब भी तुम्हें एलसीए वाला जो आइडिया है वो तुम्हें दिमाग में आ जाता है, राइट। सो तुम सारे टेस्ट केस नहीं चला पाते बट कुछ चला लेते, राइट। So yeah, overall the contest was balanced. I think it was a very good contest, very good to get a very good rank. And I think the explanation and the solutions were I think were helpful enough that आपको समझ में आया. If you understood the solutions, if you liked the video, if you liked the solutions, then do drop a like, do comment, do subscribe. Comment करो यार. Okay, commenting is very important. उससे मुझे पता लगता है कि where am I going wrong or what good I am doing. Right? It gives me a pat on the shoulder कि भाई सही काम चल रहा है. Right? So please comment. It's a humble request that you comment on the videos. Right? And do drop a like. Like करो भाई ताकि पता लगे that you are liking the video or not. Videos को end तक देखो. I know that videos are long, but because it's a detailed solution, it's for your own good, right? सो ट्राई एटलीस्ट जो प्रॉब्लम देखने आए हो एटलीस्ट उसको पूरा देख के जाओ, राइट। सो यप, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर peers, and anyone who is interested in coding in DSA.
राइट? और कॉन्टेस्ट देते रहो एंड वील बी बैक अगेन विद सम अदर वीडियो इन दिस बाई वीकली कॉन्टेस्ट सीरीज, राइट? तब तक के लिए बाय बाय, कीप ग्राइंडिंग, कीप डूइंग जैसे, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय, साइनिंग ऑफ।